A very good morning to all of you. Myself, Professor Yasir Beg from Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Mechanical Engineering. As you all know that we are currently undergoing the lecture series over the subject of engineering thermodynamics, and recently we have covered some topics that we'll see right now. And today's topic in the subject will be comparison between an auto, diesel and a dual cycle. Okay, so we have what we have already seen. I'll show you previously. What we have already seen is we have already seen that what a power cycle is. The power cycle is a cycle in which works in a closed loop, a cyclic process, and as a result it gives you some work done in some net work done as an output while taking some net heat supplied during its whole process. Okay, so that was the definition of power cycle. Then there were some air standard assumptions that we have done. We have said that the air is going to be the working fluid and no friction will be considered. The specific heat at constant pressure and constant volume is not going to be varying with respect to temperature, and the working medium will be considered as air. So these were the air standard assumptions that we have made. Then we have seen that the most ideal cycle and most ideal air standard cycle is the Carnot cycle. So we have done the study of Carnot cycle, and we have seen that Carnot cycle consists of 4 processes. The first process was adiabatic compression, second was isothermal heat addition, then adiabatic expansion, and then isothermal heat rejection. So these were the 4 processes involved in Carnot cycle, and this was the ideal cycle, which means that it was giving the maximum efficiency possible by any power cycle. Okay. Second was Otto cycle. We have seen that Otto cycle was the cycle on which our practical petrol engines and gasoline engines work. Okay, so this was the cycle which also had 4 working processes. First was adiabatic compression, then isochoric heat addition, that means that the pressure was constant during the heat addition process, then adiabatic expansion, and finally the 4th process was isochoric heat rejection. Okay, so the heat addition and heat rejection were taking place at constant volume, and in Carnot cycle the heat rejection and heat addition was taking place at constant temperature. Okay, that was the difference between a Carnot cycle and an Otto cycle. So we have seen that the efficiency of Carnot cycle was nothing but 1 minus low temperature upon high temperature. Then the efficiency of Otto cycle was 1 minus 1 upon RC to the power gamma minus 1, where RC was the compression ratio. Later on we have studied diesel cycle. Diesel cycle was the cycle on which our practical diesel engines run. The processes involved in this cycle were first process was again adiabatic compression. Then instead of isochoric or isothermal, here what we have done is we have done isobaric heat addition. That means that the heat was being added at constant pressure instead of constant temperature or constant volume. Okay, and then later on we have seen that the third process was again adiabatic expansion, and finally the heat rejection was taking place at constant volume. Okay, so this was the these were the 4 processes involved in diesel cycle. And then later on we have seen a dual cycle. Dual cycle was a combination of Otto cycle and diesel cycle, and in dual cycle we have seen that the heat addition was taking place partially on constant volume and then partially on constant pressure. So it was a combination of these two. Okay, so it was a more practical cycle. In a practical engine runs on this cycle a lot, right? What I mean is that the running of practical engine matches the assumptions or the this cycle the maximum among all these. Okay. Then the Brayton cycle, we have seen that the aircraft engine work on Brayton cycle, and the efficiency of Brayton cycle was 1 minus 1 upon Rp to the power gamma minus 1 upon gamma, where Rp was the pressure ratio. Pressure ratio was nothing but the ratio of pressure of the system after compression divided by pressure of the system before compression process was taking place, right? So these were the things that we have already previously seen in this unit.
Okay, and now we will be moving on with our today's topic. The today's topic is comparison between an Otto cycle, diesel cycle and a dual cycle. So we have already seen what an Otto cycle is, and we have already seen what a diesel cycle is, and also we have already seen that what a dual cycle is. What I am interested in this lecture is I want to compare the parameters associated with these cycles. Okay, so what are the parameters that are associated with these cycles? For example, we want to compare that among all of these, which is going to be giving us the maximum efficiency. I mean, will Otto cycle give us the maximum efficiency, will diesel cycle, or will the dual cycle will be giving us the maximum efficiency? But we cannot simply compare these three. Why? Because we have to fix some parameter that based on these parameters we are comparing these cycles. For example, what I meant is if I want to compare these three, I need to fix some parameters which will be same in Otto, diesel and dual cycle, right? So let's see what it is written here, that Otto cycle, diesel cycle and dual cycle are all different type of air standard cycles. Surely they are all different air standard cycles. We have already seen. The comparison between these cycles can only be done if we fix some particular parameters. Yes, I have told you that we have to fix some particular parameters. हमें कुछ ना कुछ parameters fix करने पड़ेंगे ताकि हम इन cycles के बीच का comparison कर सकें. Then the parameters that we have to fix will be compression ratio. Either हम ये कहें कि compression ratio same होगा तीनों का, है ना, कंप्रेशन रेशियो के अलावा, या हम ये कहें कि पीक प्रेशर यानी कि तीनों का मैक्सिमम प्रेशर सेम होगा, या हीट एडिशन सेम कराई जा रही है, या हीट रिजेक्शन सेम कराया जा रहा है, या फिर वर्क आउटपुट सेम है तीनों में. ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमें पैरामीटर फिक्स रखना पड़ेगा, तभी जा करके हम तीनों साइकिल की एफिशिएंसी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं. आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि एक 3rd क्लास का बच्चा और एक 10th क्लास के बच्चे के बीच में कौन ज़्यादा स्मार्ट है, राइट? आपको अगर स्मार्टनेस मेजर करनी है तो आप या तो दोनों बच्चे 10th क्लास के लेंगे या दोनों बच्चे 3rd क्लास के लेंगे, ऑब्वियसली, राइट? तो आपके पास कुछ ना कुछ पैरामीटर ऐसा होना चाहिए जिस पैरामीटर को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, और फिर जो है आप इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, साइकिल्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके, सो नाउ विल सी, इन ऑर्डर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ साइकिल, सम ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स मस्ट बी फिक्स. यस, यही मैंने आपसे कहा अभी. यस, मूविंग ऑन. कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं हम? तो कंपैरिजन इज मेड टू एनालाइज विच साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस. यानी कि अगर एक गिवन सेट ऑफ पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि कंप्रेशन रेशियो इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब बताओ कि इस कंप्रेशन रेशियो के अंदर सबसे बेटर परफॉर्म कौन सी गाड़ी करेगी? पेट्रोल गाड़ी करेगी, डीजल गाड़ी करेगी, या ड्यूल साइकिल पे चलने वाली गाड़ी करेगी? तो इस तरह का आप कंपैरिजन दे सकते हैं अगर आप जो है इसका परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाएँ, राइट? तो चलिए सबसे पहला कंपैरिजन देखते हैं. काफ़ी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को अलग अलग करके फिक्स करके इसका कंपैरिजन करा जा सकता है. सबसे पहला जो मैं करना चाहूँगा, इट विल बी दैट आई एम गोइंग टू फिक्स द कंप्रेशन रेशियो एंड द हीट एडिशन. अब इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है, मैंने ये कह दिया कि तीनों साइकिल्स का कंप्रेशन रेशियो सेम होगा, है ना, और मैंने ये कह दिया कि तीनों साइकिल के अंदर जो हीट ऐड कराई जा रही है वो हीट सेम अमाउंट में ऐड कराई जाएगी. अब एफिशिएंसी का मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, जो कि क्या है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड. ये मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है. कोई भी साइकिल ले लें आप, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है. कोई भी रिवर्सिबल साइकिल हो, उस साइकिल के लिए ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला वैलिड रहता है. अब कंप्रेशन रेशियो सेम होने से मतलब क्या है? कंप्रेशन रेशियो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, नहीं, मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा था इसे? आर से रिप्रेजेंट करा था, आई थिंक. यस, प्रीवियस लेक्चर्स में आर से रिप्रेजेंट कराया गया था. तो कंप्रेशन रेशियो आर जो है, इट वाज नथिंग बट व्हाट? इट वाज वी आफ्टर कंप्रेशन, राइट? तो आफ्टर कंप्रेशन यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय वी बिफोर कंप्रेशन यानी कि 0.1. ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो होता था. तो यानी अगर तीनों के अंदर कंप्रेशन रेशियो फिक्स करा जा रहा है तो मतलब तीनों को सेम पॉइंट से कंप्रेस करना चालू करा गया होगा, सेम वॉल्यूम से, और सेम वॉल्यूम तक तीनों को कंप्रेस करना ख़त्म करा गया होगा. तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो मैंने तीनों साइकिल्स एक साथ बनाई हैं, राइट? आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि 1 से 2
देन 2 से 3 एंड 3 से 4 एंड 4 से 1, ठीक। तो 1 2 3 4 1 ये जो साइकिल है 1 2 3 4 1 ये आपकी डीजल साइकिल है, राइट। देन 1 से 2, देन 2 से 2 डैश, 2 डैश से 3 डैश, देन 3 डैश से यहाँ पर आ जाएं आप, तो दिस इज 4 डैश एंड देन अगेन 4 डैश से 1। ये जो साइकिल आपको दिखाई दे रही है इट इज़ डुअल साइकिल, क्योंकि देखिएगा इसमें कुछ अमाउंट में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है और कुछ अमाउंट में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, राइट। तो ये, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें दोनों का कंप्रेशन रेशो सेम है, राइट। दोनों का कंप्रेशन प्रोसेस देखें आप एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए ये जो साइकिल है ये आपकी साइकिल 2 है, डुअल साइकिल है। डुअल साइकिल क्या है, 1.1 2 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 0.1, ठीक है। देन फाइनली व्हाट इज द दिस इज ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल के लिए देखें अगेन सेम पॉइंट से कंप्रेशन चालू हुआ, सेम पॉइंट पे कंप्रेशन खत्म हुआ, तो ये आपका जो है कंप्रेशन रेशियो सेम हो गया। देन इसके बाद आप देखें 0.2 से 0.3 डबल डैश, राइट। तो ये जो 0.3 डबल डैश आपका आया है ये पूरा वर्टिकल लाइन है, यानी कि जो हीट एडिशन हो रहा है वो हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, वो हीट एडिशन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और 3 डबल डैश के बाद आप ये एक्सपेंशन करते हुए आए हैं और एक्सपेंशन करने के बाद आप यहाँ 4 डबल डैश पे आए हैं एंड 4 डबल डैश से अगेन आप 0.1 तक आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी तीनों साइकिल्स आपस में बनी हुई हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप ये तो मानेंगे, आप कहेंगे सर ये तो मैंने मान लिया कि कंप्रेशन रेशियो सेम था, तो यानी कि ये प्रोसेस सेम होना चाहिए था, तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली तीनों का सेम है, ठीक है। और सर मैंने ये भी मान लिया, क्या मान लिया कि सर यहाँ से जो है डीजल साइकिल को चलना था, तो डीजल साइकिल जो है ये इस तरह से ऐसे करके चलती हुई आई, ओके। और फिर सर ऐसे आकर के डीजल साइकिल 3 से ये 4 तक आई और 4 से अगेन वापस 1 तक आ गई, ये मैंने मान लिया। लेकिन अब मैं ये कैसे मान लूँ कि जो मेरी ऑटो साइकिल थी वो ऑटो साइकिल यहाँ से ऐसे लाइन उठते हुए ऊपर तक आई थी और ऊपर से उठने के बाद ये यहीं आके रुकी हो सकता है ये इससे ऊपर आकर के रुकी होती और फिर जो है आपका यहाँ से इस तरह से जो है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा होता। तो हमने क्योंकि यहाँ पे एक और अजम्पशन लिया हुआ है, अजम्पशन क्या, हमने एक और पैरामीटर फिक्स करा हुआ है, जो पैरामीटर क्या है, हीट एडिशन है। तो क्योंकि हमने हीट एडिशन फिक्स करा हुआ है तो दिस इज डन बाय एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस एज वेल, कि जब आप हीट एडिशन कर रहे होते हैं और दोनों को सेम अमाउंट में हीट एडिशन करेंगे तो ये लाइन इज नॉट गोइंग टू क्रॉस हियर, रादर इट विल ऑलवेज फॉल अंडर दिस थिंग, राइट। तो इट विल कम as at the lower most point. Why? Because the heat rejection will be minimum here. Okay, here the heat rejection will be minimum because ये प्रोसेस क्या था, ये हीट रिजेक्शन का प्रोसेस था। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा यहाँ से दिखाना चाहूँ तो थोड़ा हम यहाँ से और देखते हैं। ओके, टीएच डायग्राम में मैं थोड़ा और इसकी बात करना चाहूँगा। आप देखिए प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 क्या था, प्रोसेस 1 से 2 था आपका हीट आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। ये एडियाबैटिक कंप्रेशन रहा। अब ये एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो आना था, एक कांस्टेंट प्रेशर आना था ऐसा, और एक आपका होना था कांस्टेंट वॉल्यूम होना था ऐसा। और हम जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का हमेशा स्लोप ज़्यादा होता है कांस्टेंट प्रेशर से, तो इसको हमेशा ऑब्वियसली ऊपर की तरफ में उठता हुआ जाना था इस लाइन को, तो ये ऊपर की तरफ में उठते हुआ आया। ओके, और जब ये ऊपर की तरफ में उठता हुआ आया इस तरह से, तो ये इसको ऐसे जाना था और इसको ऐसे जाना था, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, कि आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि कंप्रेशन रेशो सेम होना चाहिए, कंप्रेशन रेशो सेम होना चाहिए, या सॉरी कंप्रेशन रेशो नहीं, आपका हीट एडिशन सेम होनी चाहिए। और हीट एडिशन क्या होती है, हीट एडिशन इज़ नथिंग बट जब आप डेल क्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, राइट। डेल क्यू आप जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होती है, डेल क्यू इज़ नथिंग बट टी इंटू डी एस। और ये आपका कर्व कौन सा है, दिस इज़ नथिंग बट टी एस कर्व, राइट। तो यानी कि इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो सेम होगा, तब जाकर के हीट एडिशन सेम हो जाएगी, राइट। तो अगर एरिया को सेम होना है किस लाइन के नीचे का, इस लाइन और इस लाइन के नीचे के एरिया को सेम होना है, तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि क्योंकि ये एरिया ऊपर की तरफ में एक्स्ट्रा आया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसको थोड़ा ज़्यादा एरिया इस साइड पे लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन दोनों का एरिया सेम नहीं होगा। क्योंकि ये जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल यानी ऑटो साइकिल में ये एरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है,
क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली इसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो ये ऊपर का एरिया ये एक्स्ट्रा दे रहा होगा, तो ऑब्वियसली जब ये ऊपर का एरिया एक्स्ट्रा दे रहा है तो इसको राइट साइड का एरिया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट। इसीलिए ये जो है ये इस पॉइंट पे नहीं रुका, अब जबकि ऑटो साइकिल जो है वो यहीं के यहीं गिर गया इस तरह से, और डीजल साइकिल जो था, डीजल साइकिल इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल गया। वाई? क्योंकि इसको एरिया बराबर करना था। तो आप अगर देखें तो ये जो एरिया है जो कि इस यहाँ पर है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया तो कॉमन है दोनों कर्व के नीचे, लेकिन जितना एरिया ये ऊपर वाला है यहाँ पे, ये एरिया ऑटो साइकिल का ज़्यादा है, जबकि ये एरिया डीजल साइकिल का ज़्यादा है, और दोनों जो है इक्वल अमाउंट में ज़्यादा है, ताकि दोनों का ओवरऑल एरिया सेम हो जाए। और अगर दोनों का ओवरऑल एरिया सेम है यानी कि दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम है, और अगर दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम है यानी TDS की वैल्यू सेम है, और TDS की वैल्यू सेम है यानी कि डेल Q सेम है, और डेल Q सेम है यानी कि हीट एडिशन सेम। अंडरस्टैंड? इसीलिए जो है आपने क्या करा, आपने जो है इसको इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से भेजा है, इसको थोड़ा आगे ओवरशूट कराया गया है, और इसको ओवरशूट नहीं करा करके इसको ऊपर की तरफ भेजा क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये वापस कहाँ पर आएंगे। तो ऑब्वियसली जो फाइनल प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस तीनों का, ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो या आपका डुअल साइकिल हो, तीनों का फाइनल प्रोसेस क्या है? तीनों का फाइनल प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, जो कि एक वर्टिकल लाइन है, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये आइसोकोरिक प्रोसेस जो कि एक वर्टिकल लाइन की तरह उतर रहा है। ओके, तो अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस एक वर्टिकल लाइन की तरह उतर रहा है तो यहाँ पे भी एक ही सिंगल लाइन होगी जो कि ये जो कि है ना ये बता रही होगी। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं कलर आई थिंक चेंज करना चाहिए मुझे अब। तो ये आपको ये एक लाइन जो दिख रही है, ये जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन है। इस लाइन के ऊपर आपका हीट रिजेक्शन हो रहा होगा। ओके, तो अब अगर मैं वर्टिकल जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस था, इसका एडियाबैटिक प्रोसेस देखूं तो ये इसको आते हुए यहाँ पे इसी लाइन को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, और ये जो था जो आपका डीजल था इसको भी इसी लाइन को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये यहाँ तक आ गया था 0.3 तक अभी हमारे प्रीवियस डिस्कशन में, और ये 0.3 डबल डैश तक आया था, है ना। तो अगर ये इस पॉइंट को इंटरसेप्ट कर रहे हैं दोनों, तो अब यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो एरिया बन रहा है इस पूरी लाइन के नीचे, ये जो एरिया बन रहा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ये किसके नीचे का एरिया है? ये ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन है, जबकि ये एक्स्ट्रा एरिया किसका है? ये एक्स्ट्रा एरिया डीजल साइकिल का हीट रिजेक्शन और एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है डीजल साइकिल एक्स्ट्रा हीट रिजेक्ट करेगी इन कंपैरिजन टू ऑटो साइकिल, और अगर डीजल साइकिल एक्स्ट्रा हीट रिजेक्ट करेगी इन कंपैरिजन टू ऑटो साइकिल, तो मैं अगर वापस से अपने कहाँ गया मेरा कर्सर, कहाँ गया? हाँ, मैं अगर वापस से अपने यहाँ आ जाऊँ तो मैं ये कह पाऊँगा कि ये देखिएगा आप, ये देखिए डीजल साइकिल इसका ये हीट रिजेक्शन ज़्यादा है, जबकि यहाँ आप देखें तो ये ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन काफ़ी कम दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो यहाँ से मैं ये इस नतीजे पे पहुँच पाया हूँ कि हीट रिजेक्शन जो है QR, ठीक, पूरे डिस्कशन से मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि QR हीट रिजेक्शन किसका? ऑटो साइकिल का। ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर, नो सॉरी, ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन इज गोइंग टू बी लेस। यहाँ से मैंने देखा ना, ये ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन था, ठीक, और ये डीजल साइकिल का ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच पाया हूं कि ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन इज गोइंग टू बी लेस और डीजल साइकिल का हीट रिजेक्शन इज गोइंग टू बी मोर। ठीक, तो क्योंकि डीजल साइकिल का हीट रिजेक्शन मोर है, तो अब ज़रा एफिशिएंसी पे हम वापस आ जाएं। तो एफिशिएंसी पे जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो आप देखेंगे, आप कहेंगे दोनों को हीट सप्लाइड तो सेम करी गई थी। जब सेम हीट सप्लाइड करी गई थी और आप ये कह रहे हैं कि हीट रिजेक्शन ऑटो का अलग है, डीजल का अलग है, ऑटो का हीट रिजेक्शन कैसा है? ऑटो का हीट रिजेक्शन इज लेस। ठीक है, ऑटो का हीट रिजेक्शन की वैल्यू छोटी है। ठीक, तो अगर ऑटो साइकिल की हीट रिजेक्शन की वैल्यू छोटी है तो ये जो वैल्यू होगी ये पूरी की पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी ऑटो साइकिल के लिए, और अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी ऑटो साइकिल के लिए तो एफिशिएंसी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ऑटो साइकिल के लिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर है ना कि एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड कर रही है QR अपॉन QS कितना छोटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 में से 0.2 घटाएं या 0.5 घटाएं, क्या बेटर है? 0.2 घटाएं, यानी कि ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी आपको मिल रही होगी, है ना। और इस वैल्यू को छोटा होने के लिए ये ऊपर वाली चीज़ को छोटा होना पड़ेगा,
राइट, ऊपर वाली चीज़ को छोटा होना पड़ेगा, यानी कि हीट रिजेक्शन को छोटा होना पड़ेगा। और हीट रिजेक्शन किस में छोटी है, तो अभी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा कि हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल के अंदर कम है, जबकि हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल में ज़्यादा है। और अगर हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये नंबर भी डीजल साइकिल के लिए ज़्यादा होगा, यानी कि एफिशिएंसी डीजल साइकिल के लिए छोटी हो जाएगी। ओके, एंड डुअल साइकिल विल लाई इन बिटवीन। तो इस बात से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। ये देखिएगा, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, ऑटो साइकिल हैज़ द हाईएस्ट वर्क आउटपुट बिकॉज ऑफ मिनिमम हीट रिजेक्शन। ऑटो साइकिल में सबसे मिनिमम हीट रिजेक्शन हो रहा है, इसीलिए जो आपका हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली ये मेंशन है, मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे बेटर होगी, देन डुअल साइकिल की होगी, देन डीजल साइकिल की होगी। तो ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस है इन तीनों के बीच का। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ एफिशिएंसी किसकी बेहतर है, तो आप कहेंगे सर क्या पैरामीटर फिक्स करा है। मैं कहूँगा पैरामीटर मैंने फिक्स करा है कंप्रेशन रेशियो एंड व्हाट, कंप्रेशन रेशियो के साथ मैंने फिक्स करा है हीट एडिशन। तो अगर कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन फिक्स करा है तो आप कहेंगे तो सर अगर ये दोनों पैरामीटर फिक्स करें ना, तो ये जान लो, क्या जान लो, कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे बेहतर होगी, डीजल साइकिल की सबसे कम होगी और डुअल साइकिल की इन बिटवीन होगी दोनों के। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं पर ही आपको बताता चलूँ, हम जितने भी कंपैरिजन करेंगे, हर कंपैरिजन के अंदर डुअल साइकिल की एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी इन बिटवीन। ऐसा नहीं होगा कि डुअल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो गई या सबसे कम हो गई। डुअल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा बीच में ही रहेगी। ठीक, चलिए, तो ये था आपका पहला वाला केस। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, कंप्रेशन रेशियो सेम है एंड हीट रिजेक्शन सेम। ठीक है, तो पिछली बार हीट एडिशन सेम था, जबकि इस बार हीट रिजेक्शन सेम है। ठीक, तो अच्छा, कंप्रेशन रेशियो सेम है से आप क्या समझते हैं, आप यही समझते हैं कि भैया ये वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन सेम होना चाहिए, यानी ये 2 पॉइंट सेम होने चाहिए। तो ऑब्वियसली सेम है। देखिएगा आप तीनों केसेस के अंदर आपको सेम नज़र आ रहे हैं क्लियरली, 1 से 2, ठीक, 2 से ये आपका 7 एंड 7 से वापस आपका 5 एंड ये 5 से 1। ठीक, अच्छा ये देखिएगा आप, ये पॉइंट 5 से 1 भी दोनों तीनों साइकिल के लिए सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि ये हीट रिजेक्शन था और हीट रिजेक्शन तीनों का सेम है। हमने यहाँ पे अजम्पशन ले लिया है कि हीट रिजेक्शन सेम होना चाहिए, और अगर हीट रिजेक्शन सेम है तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये लाइन जो है तीनों के लिए सेम निकल के आएगी। ठीक, तो ये लाइन सेम रहेगी 1 से 2 कंप्रेशन वाली, और हीट रिजेक्शन वाली लाइन सेम रहेगी। अब बात ये होती है कि भाई ये यहाँ से इसने चलना चालू करा, तो ये चलता हुआ कहाँ तक आएगा, ये इसको ओवरशूट कर जाए, ये इसके यहीं पर ही आकर के रुक जाए, ये कहाँ रुकना चाहिए, या इसी पॉइंट पे आकर के रुके। ठीक, तो अब आप ये जानते हैं क्योंकि तीनों प्रोसेसेस जो हैं, जो एक्सपेंशन प्रोसेस है तीनों का, वो एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक की एक ही यही लाइन हो सकती है जो कि इस पॉइंट पे आकर के टकराएगी 5 पॉइंट पे। इसके अलावा कोई और एडियाबैटिक की लाइन 5 पॉइंट पे नहीं टकराएगी। राइट, तो अगर एक ही लाइन हो सकती है जो कि 0.5 पे आकर के टकराएगी, तो ऑब्वियसली इन तीनों को एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करना होगा। ये जो लाइन जा रही है आपकी, इस लाइन के ऊपर ही तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करना होगा। और अगर तीनों कर्व्स इसी लाइन को इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो ये जो आपका डीजल साइकिल थी, जो कि आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन था, वो इस तरह से रहेगा। जो आपकी डुअल साइकिल थी वो ऐसे आकर के, ये थोड़ा सा ऊपर आकर के ये आएगा, ठीक है, और इसी पॉइंट पे आ रहा होगा। जबकि आपकी ऑटो साइकिल जो थी वो सीधे वर्टिकली ऊपर आएगा और इसी लाइन पे आकर के इंटरसेप्ट करेगा। राइट, तो अगर अब मैं देखूं तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, कि हीट एडिशन किस में ज़्यादा होना चाहिए। राइट, हीट एडिशन किस में ज़्यादा होना चाहिए, मुझे ये देखना है। ओके, अब हीट एडिशन को देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको क्लियरली वर्क डन नोटिस करवा देता हूँ, है ना। वर्क डन अगर आप देखेंगे तो वर्क नेट जो है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये जो है ये तो टोटल आउटपुट वर्क हो जाएगा, जिसमें से ये तो आपने कंप्रेशन वर्क था, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं हम। तो जब इसे रिड्यूस कर देंगे तो सिर्फ साइकिल के अंदर का जो एरिया है वो एरिया बताएगा कि कितना वर्क हुआ है। तो अगर अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर करके आपको दिखाना चाहूँ तो आप ज़रा देखेंगे क्लियरली कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या बता रहा होगा कि कितना वर्क करा है किसने, आपके डीजल साइकिल ने। ठीक है, तो ये एरिया बता रहा है कि नेट वर्क आउटपुट आपको मिला है डीजल साइकिल से इतना।
फिर ये जो ऊपर आपको कलर चेंज कर करके मैं वापस दिखाता हूँ, ये जो ऊपर आपको, अरे कलर चेंज नहीं होता है एक तो, यस ये जो ऊपर आपको ये एरिया एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, ये एरिया ऑटो साइकिल में आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि ऑटो साइकिल में इतना वर्क डन ज़्यादा हुआ है। और ऑटो साइकिल में अगर इतना वर्क ज़्यादा हुआ है, यानी कि वर्क ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर देन वर्क ऑफ व्हाट, वर्क ऑफ यस डीजल साइकिल, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वर्क ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर देन व्हाट, देन वर्क ऑफ डीजल साइकिल, तो क्या बात चल रही थी, यस वर्क ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर देन वर्क ऑफ डीजल साइकिल। अब मुझे यहाँ पर निकालना था कि मेरा हीट सप्लाइड का रिलेशन क्या है। तो हीट सप्लाइड क्या होती है, हीट सप्लाइड इज नथिंग बट, हीट सप्लाइड इज नथिंग बट व्हाट, हीट सप्लाइड इज नथिंग बट वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड। ये हमने सेकंड लॉ से पढ़ा है जब हमने सेकंड लॉ करा था, राइट। और तीनों केसेस के अंदर आप ये कह रहे हो, तीनों केसेस के अंदर हीट रिजेक्टेड सेम है, ये आपने ऊपर कहा ना हीट रिजेक्शन इज सेम। तो अगर तीनों केसेस में हीट रिजेक्शन सेम है और वर्क डन ऑटो साइकिल का सबसे ज़्यादा है, तो क्लियरली समझ आ रहा है कि हीट सप्लाइड भी ऑटो साइकिल के लिए सबसे ज़्यादा रही होगी। ओके, एंड अगेन आई विल टेल कि एफिशिएंसी जब निकालने जाते हैं तो 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड होता है, एंड इस नंबर को छोटा से छोटा होना पड़ेगा अगर एफिशिएंसी बेटर से बेटर चाहिए, ठीक। और इस नंबर को छोटा से छोटा होना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि ये सेम है सबका, तो ये सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जिसका बड़ा होगा वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये किसका बड़ा है, ये ऑटो साइकिल का सबसे ज़्यादा बड़ा है QS, ठीक। तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी किसकी सबसे बेटर हो जाएगी, सबसे बेटर हो जाएगी ऑटो साइकिल की। क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ मैंने बताई होगी, यही पूरी जो मैंने अभी आपको रामगाथा सुनाई वो सब यहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो एट दी एंड फाइनली जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अभी भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑटो साइकिल की सबसे बेटर एफिशिएंसी है, ठीक, डीजल साइकिल की सबसे कम एफिशिएंसी है, एंड डुअल साइकिल की बीच में है, दोनों के बीच में है। तो क्लियरली अब बात समझ में आ गई कि जब तक कंप्रेशन रेशो सेम रहेगा तब तक ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे बेटर रहेगी। आप सीधी बात समझ लें, जब तक कंप्रेशन रेशो सेम तब तक ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा। यस, नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। सेम पीक प्रेशर, सेम पीक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो पीक प्रेशर का मतलब क्या है कि PV डायग्राम के अंदर सब मैक्सिमम प्रेशर सबका सेम होगा। तो जो साइकिल हो जाएगी, साइकिल यहाँ से अगर मैं चलता हूँ, ऑटो साइकिल देखता हूँ, ऑटो साइकिल ये 1 से 2, 2 से 3 एंड देन 3 से 4 एंड 4 to 1, ये क्या है, ये मेरी ऑटो साइकिल है। तो ऑटो साइकिल का मैक्सिमम प्रेशर ये है। तो अगर ऑटो साइकिल का मैक्सिमम प्रेशर ये है तो अब सबका मैक्सिमम प्रेशर यही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अच्छा कंप्रेशन प्रोसेस भी सबका सेम होना चाहिए क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो यही लाइन फॉलो करेंगे सब। तो इसी लाइन को फॉलो करते करते अब और आगे बढ़ना पड़ेगा किसे, डीजल साइकिल को, और इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा कि उस प्रेशर वाली लाइन को कहीं काट दे, और जहाँ प्रेशर वाली लाइन को काटेगा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्लियरली, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका पॉइंट 2', ठीक है। तो 1, 2', 3 एंड 4, ये क्या है, ये आपका डीजल साइकिल है, एंड ऑब्वियसली डुअल साइकिल विल बी इन बिटवीन, ठीक है। तो अब क्लियरली नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि ये जो एरिया है ये क्या है, यस बताइए ये एरिया क्या है। अरे आप नहीं बता सकते, ये दिस इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियो। ये एरिया जो है दिस इज़ नथिंग बट द वर्क डन जो कि ऑटो साइकिल ने करा, ठीक। और अगर मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊँ अब, जो कि बड़ी मुश्किल से होता है मुझसे, तो अगर मैंने कलर चेंज करके दिखाया तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एरिया क्या है, ये एरिया एक्स्ट्रा है, किसमें, डीजल साइकिल में। तो ऑब्वियसली वर्क डन किसका ज़्यादा, वर्क डन डीजल का ज़्यादा, वर्क डन डीजल का ज़्यादा, किससे, ऑटो से, वर्क डन डीजल का ज़्यादा ऑटो से। और अगर वर्क डन ज़्यादा और हीट रिजेक्शन सेम है, ये आपने कहा हुआ है हीट रिजेक्शन इज सेम, है ना। तो अगर आप कहेंगे कि भैया हीट सप्लाइड की बात करें तो हीट सप्लाइड जो है ये क्या होता है, ये क्या होता है, अगेन ये होता है वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड, ओके। एंड क्योंकि हीट रिजेक्टेड सेम है तो जिसका वर्क डन ज़्यादा उसकी हीट सप्लाइड ज़्यादा, ठीक। तो वर्क डन किसका ज़्यादा, वर्क डन डीजल का ज़्यादा, और वर्क डन डीजल का ज़्यादा तो हीट सप्लाइड भी किसकी ज़्यादा, डीजल की ज़्यादा। और अगर हीट सप्लाइड डीजल की ज़्यादा तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा, तो एफिशिएंसी होती है अगेन 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड। यस, यू आर एग्जैक्टली राइट, हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड, ठीक है। तो अब हीट रिजेक्टेड तीनों में
सेम है। अगर हीट रिजेक्टेड तीनों की सेम, तो यानी जिसका QS ज़्यादा, जिसका QS ज़्यादा उसका ये वैल्यू कम, ठीक, और जिसकी ये वैल्यू कम उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, राइट। तो जिसका QS ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा। QS किसका ज़्यादा? QS ज़्यादा जिसका वर्क डन ज़्यादा। वर्क डन किसका ज़्यादा? वर्क डन डीजल का ज़्यादा। काफ़ी सारे एक दूसरे से कनेक्शन है, राइट। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, बट आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, है ना, कि वर्क डन किसका ज़्यादा? वर्क डन आपका डीजल का ज़्यादा, इसलिए हीट सप्लाई डीजल की ज़्यादा और हीट सप्लाई डीजल की ज़्यादा, इसलिए ये रेशियो जो है ये डीजल का छोटा रहेगा, और ये रेशियो अगर डीजल का छोटा रहेगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी डीजल की बड़ी रहेगी। तो अब यहाँ पर एफिशिएंसी किसकी सबसे बड़ी हो गई? एफिशिएंसी डीजल साइकिल की सबसे बड़ी हो गई, एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की सबसे छोटी हो गई। और अगर मैं बीच की बात करूँ तो बीच में मुझे कौन मिल रहा है? बीच में मुझे मिल रहा है मेरी डुअल साइकिल, ठीक, डुअल साइकिल। तो डुअल साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो दोनों के बीच में आ जाएगी, राइट। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जितने भी अब बाकी के कंपैरिजन होते हैं, बहुत सारे कंपैरिजन है ना, मैं आपको दिखा दूँ, यही वही पूरी कहानी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, वही पूरी कहानी है, ठीक। यस, और भी सेम तरीके के एजम्पशंस, सेम तरीके के एनालिसिस आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी तक आपने मैक्सिमम प्रेशर को सेम लिया था और टेम्परेचर को सेम लिया था, अब आप मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट को सेम ले सकते हैं, यानी हीट सप्लाइड को सेम ले सकते हैं। फिर आप मैक्सिमम प्रेशर और वर्क इनपुट को सेम ले सकते हैं, या सॉरी वर्क आउटपुट को सेम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पैरामीटर्स ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी? डीजल की। इसमें किसकी? डीजल की। तो क्लियर सी बात है, आज से एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आपसे पूछा जाए कि एफिशिएंसी का कंपैरिजन बताइए, एफिशिएंसी किसकी बेटर, तो आप कहेंगे जिसका अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है, कंप्रेशन रेशियो सेम है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे बेटर, डीजल साइकिल की सबसे ख़राब, ठीक। और अगर मैं कहूँ कि कंप्रेशन रेशियो सेम नहीं है लेकिन दूसरे पैरामीटर सेम है, कंप्रेशन रेशियो अलग अलग है, तो आप कहेंगे भैया कंप्रेशन रेशियो अलग अलग है, लेकिन अगर ये दूसरी पैरामीटर्स जिनकी हमने बात डिस्कस करी है वो सेम है, तो आप कहेंगे तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, तो आप कहेंगे तो भैया डीजल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंपैरेटिव एनालिसिस था किस किस में? ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल के बीचों बीच। ओके, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर इन दिस लेक्चर, एंड पूरे कंपैरेटिव एनालिसिस हमने देख लिए हैं। Now in next class we will see what? We will see some of the other cycles which are also not so much popular, but also they were used in the past and they have a historical significance. तो हम उन historical significances की वजह से उन cycles को और देखेंगे, and this cycle business will be over. Okay, so I think that is enough for today, and thank you very much for watching.